जीवन में अगर कुछ हासिल करना हो या किसी भी मुकाम पे पहुंचना हो तो ऐसा क्या एलिमेंट होता है जो होना ही चाहिए? स्ट्रॉन्ग हार्ट। स्ट्रॉन्ग हार्ट, जी हाँ, यू सेड इट वेरी राइट कि जीवन में अगर आपको कुछ भी पाना है तो विल पावर या स्ट्रॉन्ग हार्ट होना बहुत ज़रूरी है। और जब आपके पास ये सब होता है तो कोई भी मुकाम, चाहे कितनी भी परेशानियां हों, आप उस मुकाम तक पहुंच ही जाते हैं। आई थिंक दिस इज समथिंग इज वेरी रिलेटेड टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट। Absolutely, because when we'll deal with blind athletes, it's not just courage and willpower, but you need a strong heart because you're going to encounter disappointments. And how do you overcome it? मुश्किलों से आप कैसे उभर के आएंगे? उसके लिए दिल बहुत strong होना चाहिए. I think you need a strong heart to overcome all that. That is my assessment of how to move forward. Absolutely. And having said that, it is the time for our next segment, Sportsmania. Cricket is a religion in India. Crores of young Indians play this game and few lucky ones even get to choose this as a profession. Well, these are non-disabled kids who are physically fit. But what about those from whom nature has snatched away the most precious gift, their eyesight? Few years ago, the idea of blind people playing international cricket was unheard of. But today, it's a reality thanks to one organization, CABI, Cricket Association for the Blind in India. Prior to 2010, in India, Cricket for the Blind was managed by Association Cricket for the Blind in India. In 2010, they decided to move on and handed over the responsibility to me and Nagesh. And we decided to create Cricket Association for the Blind in India, an independent organization supported by Samarthanam Trust to promote, foster, govern and manage the game of cricket for the blind in India from then onwards. But the real turning point was the CABI's decision to host the first ever T20 Blind World Cup in 2012. Lack of funds did not deter this mad duo from hosting the World Cup, and it was a grand success. Fortunately, India won the match. The entire crowd was full of joy and celebration started all over. And thousands and lakhs of people who followed the match through TV were jumping. Indeed, that victory was a game changer for both CABI and blind cricket in India. Accolades and recognition followed as India started winning tournament after tournaments thanks to CABI. Today, blind cricket is firmly established in India and has become a profession for many young cricketers. Some of its players like Shekhar Nayak have even been awarded a Padma Shri. Whenever we enter in ground, we never feel that we are less than others. Definitely, we used to play like same. They have passion more than them also. Still, we are facing few physically problems. That means we can't see properly. We won't practice regularly. Still, we are doing something for nation. CABI today has grown so big that it has impacted 25,000 cricketers from 30 states. CABI is also affiliated to World Blind Cricket Limited. आओ शोर मचाओ, इनकी हिम्मत बढ़ाओ. I support Cricket for the Blind. Do you? ये कहानी है आशाओं की, ये कहानी है सपनों की, ये कहानी है क्रिकेट फॉर ब्लाइंड की। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शैलेंद्र यादव जी, जनरल सेक्रेटरी फॉर द क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। थैंक यू मैम। साथ ही में हमारे साथ है नीलेश यादव, हु इज अ क्रिकेट प्लेयर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। तो सर, इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन इंडिया? ये सपना आपने कैसे देखा और क्या क्या किया इसको पूरा करने के लिए? जैसे कि आपको पता है कि क्रिकेट अपने कंट्री में एक रिलीजन की तरह देखा जाता है और हर लेवल पे क्रिकेट को खेला जाता है, गली क्रिकेट से लेके और आजकल तो क्रिकेट लीग्स के फॉर्मेट में बदल गया है। सो अर्ली 80s में
ब्लाइंड क्रिकेट काफ़ी ब्लाइंड स्कूलों में खेला जाता था, बट कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी. सो विद द हेल्प ऑफ मिस्टर जॉर्ज इब्राहिम, ही फाउंड दिस एसोसिएशन इन 1990. सो ही ऑर्गेनाइज फर्स्ट नेशनल, और उसके बाद उन लोगों ने कई साल तक 2008 तक ब्लाइंड क्रिकेट को इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चलाया. बट किसी वर्ष चैलेंजेस की वजह से उन्होंने टेकअप नहीं कर पाए आगे, और काफ़ी क्राइसिस थे, लैक ऑफ सपोर्ट, लैक ऑफ फाइनेंशियली गवर्नमेंट रिकग्नाइजेशन की कमी थी. 2010 में डॉक्टर महांतिस जी को, उस टाइम पे वो क्रिकेट खेलते आए थे 96 तक. 96 के बाद डॉक्टर महांतिस जी मूव फॉर सोशल सेक्टर डेवलपमेंट फॉर ब्लाइंड पीपल एंड डिसेबल्ड पीपल. 2010 में उन्होंने फॉर्म की क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया. सो 2010 में उन्होंने जब ये टेक ओवर की एसोसिएशन, उस दिन से आज तक ब्लाइंड क्रिकेट डे बाय डे इज़ ग्रोइंग वेरी वेल, और जिसका परिणाम है कि ऑलमोस्ट 25 से 30 हज़ार ब्लाइंड क्रिकेटर्स आर प्लेइंग ब्लाइंड क्रिकेट फुल टाइम विद अ फुल डेडिकेट एंड पैशन के साथ. सो अब नाउ हमारे प्लेयर्स को पद्मश्री मिल रहा है. अभी सुनने में ऐसा आ रहा है कि शायद अर्जुन अवार्ड भी इसी अभी मिलने जा रहा है एक और इंडियन कैप्टन को, और अभी इनको गवर्नमेंट जॉब्स मिल रही हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है. और सबसे बड़ी बात जो इस ब्लाइंड क्रिकेट को जिसने बदला है, वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने शुरू से ही इन दिव्यांग बच्चों के लिए, प्लेयरों के लिए, उन्होंने जो इनको अपने पास बुला के उनसे मिलना, उनको प्रोत्साहित करना, मेरे को लगता है कि इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, व्यक्तित्व, पर्सनल, इंडिविजुअल ऑल्सो, एंड द ओवरऑल द ब्लाइंड क्रिकेट गेम ऑल्सो. So Veronica, just to have a better understanding of how blind cricket is played, इसमें क्या है कि if you look at this ball itself, and this is something that Shailendra and Nilesh showed it to me early in the morning. If you move the ball, it makes a noise, and that's how they're able to make contact when you're bowling and when you're batting. और अंडर आर्म फेंका जाता है, ओवर आर्म नहीं फेंका जाता है. So अगला सवाल नीलेश जी आपसे मैं पूछता हूँ, आप तो रामजस कॉलेज के भी छात्र हैं और इंडिया के लिए भी खेलते हैं आप. Yes. And your best performance has been against पाकिस्तान. यस सर. तो अपनी जर्नी के बारे में बताइए, और परफॉर्मेंस जो पाकिस्तान के अगेंस्ट रहा है आपका. जर्नी हमारी क्रिकेट में बचपन से रुचि थी, क्योंकि मैं बेसिकली पार्शियल ब्लाइंड था, तो नॉर्मल क्रिकेट को देखता था, और उसको कई बार अंडर आर्म जो गांव में लोग खेलते हैं तो उन लोग के साथ मैं खेलता भी रहा. तो प्रैक्टिसेस वहाँ से थी. फिर उसके बाद 2016-17 के बीच में मेरे आँख पे चोट लग गई, तो दोनों आँख चली गई. तो उसके बाद मैंने क्रिकेट स्कूल में अपने खेलना शुरू किया. तो वहाँ पे हमारे सीनियर्स गाइड किए, एक प्रकाश चौधरी जी हैं, उन्होंने गाइड किया, और बहुत सारे हमारे यहाँ सीनियर हैं. एथलेटिक्स में रामकरण जी, ये लोग वहाँ पे उस टाइम रहते थे, तो लोग हमें सपोर्ट करते थे. इवन अभी हमारे कैप्टन मनीष हैं, उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले हमें बहुत सपोर्ट किया, प्रैक्टिस कराए. तो उस टाइम पे फिर हम एक बार दिल्ली टीम का ट्रायल चल रहा था, तो वहाँ पे आए, तो सर से उस टाइम पे मिले. तो उस टाइम हमारा कोई ये नहीं था कि हम क्रिकेट खेल भी पाएंगे. तो सर ने ही बोला कि प्रयास करो, ज़रूर सक्सेस होगे. तो उसके बाद हमने उस टाइम से और डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करना शुरू किया, क्योंकि बेसिकली इंजर्ड होने के बाद एक तरह से टूट जाता है दिमाग कि हम नहीं कुछ कर सकते यहाँ से, अब क्या हो सकता है. तो वहाँ से फिर सर ने जब कहा, फिर उसके बाद बहन पापा का सपोर्ट मिला, तो वहाँ से फिर और प्रैक्टिस करने के बाद हमने दिल्ली टीम में ज्वाइन किया 2017 में, और उसके बाद 2018 में नागेश ट्रॉफी खेलना शुरू किया, और 2019 में नेपाल ओडीआई में डेब्यू किया, इंडिया नेपाल बायलैटरल. उसके बाद 2022 में 3rd T20 वर्ल्ड कप, और इसी वर्ष वर्ल्ड गेम में बर्मिंघम में पाकिस्तान के खिलाफ मुझे खेलने का अवसर मिला. और उस मैच में, पहले मैच में मुझे विकेट नहीं मिला, लेकिन वो मैच मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि मेन सारे उनके बैट्समैन के सामने बॉलिंग करने के बाद ये खुशी मिली, क्योंकि वो उस तजुर्बे के बल्लेबाज हैं जो कि हर ओवर में पार्सली बॉलरों को भी 2-2, 4-4 चौके मारने की क्षमता रखते हैं. लेकिन उनके सामने 2-3 रन और 6 रन का ओवर करने के बाद एक कॉन्फिडेंस आया, और फाइनल मैच में मुझे 2 विकेट मिला, और वो दोनों विकेट ही मुझे ही मिला. जी. तो ये बताओ कि दिल चाहिए या दिमाग चाहिए क्रिकेट खेलने के लिए? क्रिकेट खेलने के लिए बेसिकली क्या है कि आप दिल से मजबूत बहुत होने चाहिए. दिमाग लगाने ग्राउंड में यूज करना पड़ता है, लेकिन
आप जब तक दिल से मजबूत नहीं है तब तक आपका दिमाग वर्क नहीं कर सकता है। जी, तो एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए दिल और बिल्कुल। दिमाग का। शैलेंद्र जी, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं इसमें भी, और प्लेयर्स का चयन भी अलग अलग तरीके से किया जाता है, तो क्या प्रोसेस रहता है प्लेयर सिलेक्शन का, एंड व्हाट आर द कैटेगरीज? यस, सो ब्लाइंड क्रिकेट में 3 कैटेगरीज खेली जाती हैं, B1, B2 और B3। सो ये तीनों कैटेगरीज सब प्रकार के जो विजन प्रॉब्लम होती है उनको अकोमोडेट करती है और इसको इंक्लूसिव एक क्रिकेट लेवल बनाती है। सो जो B1 प्लेयर होते हैं वो 100% ब्लाइंड होते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं देख सकते, उनकी संख्या 4 होती है। उसके बाद B2 होते हैं जो कि 3 मीटर तक ऑब्स्टिकल्स देख सकते हैं, सो उनकी संख्या 3 होती है। और उसके बाद B3 होते हैं जो कि 6 मीटर तक ऑब्स्टिकल्स देख सकते हैं, सो वो 4 होते हैं इक्वल्स टू 11। और इसमें कीपर हमेशा B3 होता है क्योंकि वो 6 मीटर तक ऑब्स्टिकल्स वगैरह देख सकता है, तो वो फील्डिंग में और फील्ड प्लेसमेंट में काफ़ी योगदान करता है, कैप्टन का भी और पूरी टीम का भी। और इसमें हमेशा जो B1 जो प्लेयर्स होते हैं उनको जो भी वो रन बनाएंगे बैट से, इट विल काउंट डबल। अगर वो 1 रन बैट से हिट करते हैं तो उनको 2 रन मिलेगा, और अगर वो 4 रन मारते हैं तो उनको 8 रन काउंट होगा। और B1 के लिए हमेशा रिजर्व ओवर होते हैं, 40% ऑफ द टोटल ओवर्स B1 ही उसको बॉलिंग करेगा। सो ये B1 को एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाते हैं इस गेम में। और सिलेक्शन की आपने बात की, अभी हमारे वर्तमान में नागेश ट्रॉफी चल रहे हैं पूरे इंडिया में अलग अलग लोकेशन में। सो उस जितने भी अभी 30 स्टेट्स हैं वो सारे नेशनल खेलती हैं, और उसमें से 56 प्लेयरों को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और फिर उसका एक ट्रायल कैंप जाता है। सो उस ट्रायल कैंप में 56 के बाद 29 आते हैं, और 29 के बाद फाइनल राउंड में हम लोग 20 प्लेयर सेलेक्ट करते हैं। सो इसके लिए एक वेरी स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म वी हैव विच involved a lot of ex-cricketer and mainstream cricketers which they help to find very good and strong team। और उसी का परिणाम है कि हम लोग 2010 से आज तक बहुत अच्छा करते आ रहे हैं ब्लाइंड क्रिकेट की हिस्ट्री में। तो शैलेंद्र जी, ब्लाइंड क्रिकेट खेलना इतना आसान शायद नहीं होगा, तो क्या पैरामीटर्स हैं जब आप सिलेक्ट करते हो किसी प्लेयर को? क्या हियरिंग बेस्ड है, रन्स अगर उन्होंने मारे हैं इन देयर टूर्नामेंट्स, क्या क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का? एब्सोल्युटली, आपने कहा कि मेरे को ये लगता है कि लाइफ में कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है। अगर आपके दिल और दिमाग ने अगर कुछ भी चाह लिया तो हर मुश्किल को आसान किया जा सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्रिकेट अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग क्रिकेट है। कभी कभी देखने में दूर से ऐसा लगता था कि बहुत लाइट क्रिकेट है, बट मैं दर्शकों को, ऑडियंस को कहूँगा कि कभी भी आप ग्राउंड पे आके देखिए इसको, ये एक अमेजिंग क्रिकेट है। सो इसके लिए ब्लाइंड होना ही ज़रूरी नहीं है, इस क्रिकेट को हर एक कोई खेल सकता है। और ब्लाइंड होने के बाद जो लोग खेलते हैं, मैं मानता हूँ कि वो अपना एक जज्बा का परिचय देते हैं, जिससे कि वो शो करते हैं कि अगर एक आपका सेंस काम नहीं कर रहा तो बाकी 4 सेंस आपकी लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं। सो इसमें पैशन जरूर चाहिए, इंटरेस्ट जरूर चाहिए, हार्डवर्क जरूर चाहिए, लॉन्ग रूट से जाना होता है, ट्रेनिंग्स होती है, कैंप्स वगैरह होते हैं। और एज यू आई सेड कि डिफरेंट कैटेगरीज रहती हैं, तो उनके चैलेंजेस भी उसी के अनुसार अलग अलग होते हैं। बट मुझे हमेशा लगता है कि पैशन इतना ज़्यादा होता है कि चैलेंजेस ओवरकम बड़े इजीली हो जाते हैं उन लोगों जी। अभी हमने ट्रेनिंग की बात करी, चैलेंजेस की बात करी, तो नीलेश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी ट्रेनिंग किस प्रकार की रहती है और क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हो जब आप ट्रेनिंग करते हो या जब आप मैच खेलते हो? चैलेंजेस बेसिकली क्या है कि हमारे लिए ग्राउंड का प्रॉब्लम आता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि उस तरीके से हमें हर जगह ग्राउंड अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो दिल्ली में क्या है कि हमें ईजिली ग्राउंड मिल जाते हैं। हम जहाँ पर हैं, हमारा हॉस्टल से सपोर्ट है, स्कूल से सपोर्ट है, था पहले तो मिल जाता है, और बोर्ड का सपोर्ट है। अभी हमारे पास 2 से 3 ग्राउंड हमेशा मिल जाते हैं, अवेलेबल हैं। जैसे कि आप लोग पहले भी आपको पता होगा, एंथनी पब्लिक एक स्कूल है वहाँ से, और अभी 12 खंभा में ही मॉडर्न पब्लिक स्कूल है वहाँ पे, और एक बुराड़ी में एकेडमी है, त्याग एकेडमी, तो वहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं। तो बेसिकली आपको यदि ग्राउंड मिल जाए तो आप प्रैक्टिस पूरी कर सकते हैं, और उसके बाद आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक आ जाए। क्योंकि जो
किसी भी चीज़ को ज़्यादा अभ्यास करेंगे तभी निखरता है, कहावत है, तो वही बात आती है। तो हमारी ट्रेनिंग का जो है क्या है कि हम मॉर्निंग टाइम में फिटनेस का करते हैं और उसके बाद ग्राउंड प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो शैलेंद्र जी, इसमें चोटें भी आती हैं, शायद आपको भी चोट लगी थी खेलते समय, तो आप किस तरीके से इससे डील करते हैं? बिकॉज ये स्पोर्ट्स है तो इंजरीज तो हमेशा आती हैं, बट येस बिकॉज बीइंग दिस इज़ अ ब्लाइंड क्रिकेट तो इंजरीज के चांसेस थोड़े से ज़्यादा यहाँ पर होते हैं। सो उसका हमेशा एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कैटेगरीज वाइज B1, B2, B3 इनको उसी के अकॉर्डिंग प्लेस किया जाता है कि जिससे कि इंजरीज के चांसेस कम हो। बट येस कभी कभी इंजरीज ज़्यादा देखने को मिलती है, बट आई फील इट इज़ ऑलवेज पार्ट ऑफ द लाइफ। इंजरीज होती रहती हैं। We never consider as a special injuries because because of the blind we got extra injuries. No, as if we are saying कि we are equal to everyone, so we never bring this special injuries part. So but yes, we always take the precautions कि injuries कम आए, because एक भी अच्छा प्लेयर घायल होने पर पूरी टीम का मनोबल गिरता है और हमें हमेशा चिंता रहती है। सो हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हमारे खिलाड़ी कभी भी घायल ना हो, और ख़ास तौर पे ग्राउंड पे तो बिल्कुल भी नहीं घायल हो। जी। नीलेश जी, फील्डिंग के समय तालमेल की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो वो तालमेल कैसे बनाया जाता है फील्डिंग के दौरान? कीपर जो होता है हमारा V3 होता है, सर ने बताया जैसे कि, तो कीपर जो होते हैं वो पहले इन्फॉर्म करते हैं, और बॉलर बॉलिंग फील्डिंग के अकॉर्डिंग अक्सर होती है, तो बॉलर बोल देता है कि अलर्ट रहना, तुम्हारे पास शॉट आ सकती है, तो हम उसके हिसाब से प्रिपेयर रहते हैं। और हम B1 है तो बेसिकली अपना एक हाथ बोलते हैं कि फेस के सामने जरूर रखो, क्योंकि फेस पे आके बॉल ना लगे अचानक से, तो उससे हम प्रोटेक्ट करते हैं। और कीपर शॉट लगते बोल देता है मिड ऑन, मिड ऑफ, या फील्डर का नेम B1 को, क्योंकि हम B1 38 के अंदर सर्कल के अंदर ही फील्डिंग करते हैं, तो गाइड करते हैं उसके हिसाब से हम डाइव मार करके, क्योंकि हम बेसिकली हर बॉल को हाथ में नहीं कलेक्ट कर सकते, नॉर्मल से भी एक बार में उनसे भी नहीं कलेक्ट होती है, छिटक जाती है, तो इसलिए डाइव मार करके पूरी बॉडी से, कि ताकि मिस यदि हाथ से बॉल मिस हो तो बॉडी से लग के रुक जाएगी। तो नीलेश, ये बताओ कि जैसे फील्ड प्लेसिंग्स आप सेट करते हो कैप्टन के साथ, तो आपकी जब आप रन अप लेते हो तो आप बॉलिंग का अप्रोच क्या रहता है आपका? अंडर आर्म तो आप फेंकते ही हो, पर वहाँ पे पिच की क्या भूमिका रहती है व्हेन यू आर बॉलिंग? पिच सेम होती है, और क्या है कि हमारे पिच में मिड लाइन पे जो मिड पिच होती है उस पर एक लाइन होती है, उससे पहले आपको पिच कराना होता है। और बॉलिंग का अप्रोच ये होता है कि स्पीड या वेरिएशन के साथ करें, क्योंकि एक ही गति से आप चल रहे हैं तो बल्लेबाज को फिर अनुमान हो जाता है, उसके हिसाब से हिट करना शुरू करते हैं, तो आपको वेरिएशन रहना चाहिए। और हमारे क्रिकेट में बाउंस भी करा लेते हैं बहुत सारे प्लेयर, और स्विंग भी करते हैं। आप क्रिकेट देखेंगे तो उसमें पूरा मैच यदि देखेंगे तो कहेंगे कि आप जो भी दर्शक हैं वो देखेंगे तो उस पर महसूस करेंगे कि हाँ, इनमें भी बस चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, सारी चीज़ें सेम होती हैं क्रिकेट की बाकी। जी, तो शैलेंद्र जी, किस तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं? T20 होता है, इंटरनेशनल होता है, नेशनल, कौन कौन सी ट्रॉफीज़ होती हैं? सो इसको एज आई सेड मेंशन इन अर्लियर, वी हैव 30 स्टेट एसोसिएशंस विद अस। सो वो सारी स्टेटें इंटर स्टेट अपने लेवल पे कराती हैं। उसके बाद जब हमारी कैबी की बारी आती है, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, हम लोग इंटर स्टेट और नेशनल, जो कि हमारी नागेश ट्रॉफी है जो भी वर्तमान में ऑलरेडी चल रही है, आज हमारे कोची में और चंडीगढ़ में मैचेस भी चल रहे हैं। उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल बायलैटरल सीरीज़ कराते हैं, एशिया कप होता है, वर्ल्ड कप होता है, और फर्स्ट टाइम अर्ली जुलाई दिस ईयर इंडिया गॉट द मतलब ब्लाइंड क्रिकेट गॉट द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस इन द वर्ल्ड गेम। सो पहली बार ब्लाइंड क्रिकेट गर्ल्स और बॉयज़ का दोनों का वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में इंक्लूड किया गया, और एक नया एडिशन हमारे ब्लाइंड क्रिकेट में जुड़ा जो कि वर्ल्ड ब्लाइंड गेम। सो अभी तक वर्ल्ड कप होते थे, और एशिया कप और बायलैटरल और ट्रायंगल सीरीज हम लोग हमेशा खेलते आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी शायद स्पेशल ओलंपिक्स में भी ब्लाइंड क्रिकेट ऐड ऑन होगा। तो वुमेन ब्लाइंड क्रिकेट की भी आपने बात करी कि अभी उनका कैसा पोजीशनिंग चल रहा है? विमेन ब्लाइंड क्रिकेट इन इंडिया में बहुत लेट स्टार्ट हुआ। हम लोगों ने 2019 में पहला विमेंस नेशनल कराया था दिल्ली में, और क्योंकि काफ़ी सालों से हमेशा हर एजीएम में ये डिस्कशन होता था
कि हमें विमेंस को भी इक्वल लेके आना है और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उनको भी देनी है, बट ड्यू टू लॉट ऑफ चैलेंजेस, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियली सपोर्ट, सो वो डिले होता जाता, बट गॉड ग्रेस कि हम लोगों ने 2019 में पहला नेशनल किया, फिर ड्यू टू कोविड 20 में नहीं हो पाया, 21 में हुआ, 22 में हुआ, और इंडियन विमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम में अर्ली दिस ईयर अप्रैल में फर्स्ट टाइम हम लोगों ने नेशनल क्रिकेट टीम फॉर्म की, जो कि नेपाल गई अप्रैल में। वहाँ पर उन्होंने उनके साथ पहली बायलैटरल सीरीज़ खेली, जो कि वो अनफॉर्चुनेटली वो सीरीज़ वो इंडिया विमेंस टीम हार के आई थी, बट मैं कहता हूँ अगेन वही कि उस हार ने विमेंस टीम को बहुत अच्छा एक लर्निंग दिया था। उसके बाद इंडियन टीम ने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड ब्लाइंड गेम में बर्मिंघम उन्होंने लंदन फ्लाई किया, और वहाँ पर उन लोगों ने जब वर्ल्ड गेम्स में अपनी परफॉर्मेंस दी तो उन्होंने उन सब टीमों को हराया जो पिछले 10 सालों से विमेंस क्रिकेट खेल रही थी, और इंडियन विमेंस टीम गोल्ड मेडल जीतकर पहली बार भारत की धरती पे उतरी थी। तो मैं मानता हूँ कि विमेंस आर डूइंग वेरी ग्रेट। जी, वेल विद दिस आई थिंक वी हैव टू रैप दिस अप। वेल, बहुत सारी चीज़ें हमने आपसे सीखी और हमारे दर्शकों ने भी सीखी। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी, नीलेश जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू मैम।